ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦੀ ਧੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਲੱਭ ਲੈਣ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਪਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜ ਬਾਜੀ ਜਿਵੇਂ फौतगी हो गई। आज हफ्ता पूरा हो गया मेरी बेटी का, कोई जवाब नहीं, कोई कुछ सुराख नहीं निकला। तो ना ही वो अकेली जा सकती है, ना पैसे घर से पकड़े हैं, ना कुछ है, ना अभी उसकी उम्र भी 16 साल है। हाँ जी, 8:20 पे वो एंटर हुई है। तो मैंने 10 बजे तक 10:30 बजे की रिकॉर्डिंग देखी है सोसाइटी के कैमरों की। वो उस गली से बाहर किसी गली में नहीं गई, ना वापस आई है गेट से, ना उस गली से आगे गई है। एक ख़तून मेरे साथ मौजूद है, इनकी नवासी थी जिसकी उम्र 16 साल थी, जिसका नाम रुखसार था। वो लोगों के घर काम करती थी और वो एक दिन काम पर जाती है और शाम को जब उसको घर से लेने जाते हैं, वो वापस माले मकान जो होते हैं जहाँ वो काम करती हैं, वो कहते हैं कि बच्ची तो आज आई नहीं है और हमारे पास तो है नहीं। आगे से वो धमकियाँ लगाते हैं और इस बात को इन्होंने रिपोर्ट करवाए 10 दिन हो चुके हैं और अभी तक बच्ची का कोई नामो निशान नहीं कि बच्ची वो गई कहाँ है। नानी से जानते हैं सारा वाक़या है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा जी 8 ਵਜੇ ਬੱਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੱਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਖਲਾਇਆ। ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੁੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਦਿਸਦੀ ਪਈ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਪਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜ ਬਾਜੀ ਜਿਵੇਂ फौतगी हो गई। ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀ ਪਈ। ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਛੱਡੀਏ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ। 2000 'ਚ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੁਆਟਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰ ਲਓ। ਕੁੜੀ ਕੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਥਾਣੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ। ਸਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਤਸਵੀਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵਹਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਂਦੀ ਪਈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਸੁਰਾਤ ਸੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਸ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਲੱਗਣਾ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਉਹਦੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉੱਧਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੁਆਟਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੁਣ ਕਰ ਲਈਏ ਕੰਮ। ਕੁੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। 10-11 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ, ਬਸ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਗਈ ਉੱਧਰ, ਅਸੀਂ ਮੂਵੀ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਬੱਚੀ ਉਵੇਂ ਜਾਂਦੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਵੇਖੀ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਦੇਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਕੋਈ ਜਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ, ਆਈ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ। ਉਸ ਉਲਟਾ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੀਨ ਕਿ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜਾਂਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦੀ ਧੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਲੱਭ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਤ ਨੀਂਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੇ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਵਾਈਏ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਬੱਚੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਬੇਟਾ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਆਟਰ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੁਬਾਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਮੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ, ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਦੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ?
ਆ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਦੇ ਰਹਿ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੇ ਰਹਿ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਆ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਛੋਟਾ, ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਉਧਰ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਜੁਐਲਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ, 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਬੰਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਈਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਤੇ ਕਿਰ जाना है, साढ़े साहबां ने करी कुड़ी साउथ लभो। जी नाज़रीन, आपने देखा उनकी नानी मेरे साथ मौजूद थी, हमने नानी से जानी सारी स्टोरी। अभी उनकी वालदा से बात करेंगे और जानेंगे बाकी स्टोरी है क्या। और ये बच्ची जो है जिसकी उम्र ये बता रहे हैं कि 16 साल है, और वो बच्ची उनकी बातों में आ गई घर वालों के, और बच्ची उनके पास मौजूद है और कैमरे में भी वो देख रहे हैं कि बच्ची उस घर के अंदर जा रही है और वहाँ से वो वापस बाहर नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो बच्ची जो आपकी रुखसार जिसका नाम है, इसकी उम्र 16 साल थी? जी 16 साल उम्र थी इसकी। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं ये सबसे बड़ी थी? जी, ये सबसे बड़ी थी। तो कभी इसकी कोई कंप्लेन आई हो, कभी किसी ने कहा हो कि ये काम नहीं ठीक करती, बच्चों को मारती है, या ऐसी कोई कंप्लेन थी उसकी? नहीं, वजह ऐसी नहीं थी। वो तो खुद लोग उसे चाहत से रखते थे कि बच्ची अच्छी है, काम करती है चुपचाप, ना ही उस बच्ची बोलने वाली थी, ना ही इतनी कोई आज के ज़माने के जैसी थी। बच्ची तो अभी बहुत छोटी है, 16 साल 18 साल की नहीं, तो ये आपने उसको काम पे क्यों डाल दिया? पढ़ा भी सकती थी उसको। बाजी मैं अकेली रहती थी, मेरे साथ मेरी बच्ची ही कमाती थी, हम कमाते थे दोनों माँ बेटी, तो अपना पेट पालते थे। छोटे बहन भाइयों को जो है ना, वो मेरे बेटे छोटे हैं, बेटी बड़ी थी, मेरे साथ कमाती थी, तो इसीलिए मैंने उसको काम पे लगाया और हम दोनों माँ बेटी काम करती थी। आपके खामन क्या काम करते हैं? मेरे खामद नहीं है, डिवोर्स किया था। जी। तो उनको ये इल्म हुआ कि बच्ची गायब है? उनके आपके इनके ससुरालियों को इल्म हुआ बच्ची अभी मिल नहीं रही, उनको आपने इन्फॉर्म किया? जी किया है। तो आपने वहाँ चेक किया कि बच्ची वहाँ तो नहीं चली गई? नहीं, सबके पास, ये मेरे जिधर मैं बैठी थी सबको पूछ लिया, कॉल भी कर ली, सारे बहन भाई मेरे साथ हैं, सब ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं उसका अता पता चल रहा। अच्छा, जिस दिन वो सुबह गई है, खुशबाश गई है, या लड़के किसी से घर से गई है? नहीं, लड़ी नहीं थी किसी के साथ भी, बस भाई के साथ उसने बात की है, तो उसने पास पकड़ा, काम पे चली गई चुप करके। तो उसने मुझे नहीं बताया था कि अम्मी मैं जा रही हूँ। मैं पीछे पता करने गई, उसकी आइज़ का थोड़ा मसला था, तो मैं पता करने के लिए गई हूँ कि बेटा घर आ जाओ, आपके आइज़ का मसला है, पहले ये ठीक हो ले। तो उन्होंने, घर वालों ने कहा कि तुम्हारी बेटी नहीं आई। हाँ। नहीं, आप डेली उसको छोड़ने जाती थी, लेने जाती थी, तो कभी ऐसे हुआ कि कभी लेट नाइट वापस आई हो? नहीं, ऐसा नहीं होता था। मैं खुद उनके साथ बात करती थी कि बाजी मैं लेने आ रही हूँ, तो मैं उसको लेके आती थी, उस सुबह अपने साथ लेके जाती थी। बच्ची के पास फ़ोन था? नहीं, बच्ची के पास फ़ोन नहीं था। अच्छा, जिस दिन गुम हुई है आप खुद गई होंगी लेने उसको, क्योंकि आप डेली लेने जाती थी, छोड़ने आती थी, तो मुझे ये बताएं, जब उस दिन आप उनसे पूछा कि बच्ची कहाँ है, तो उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने ये कहा कि ऐसा क्या हुआ, आपकी बच्ची कहाँ चली गई? मैंने कहा कि बाजी कहीं नहीं गई, वो आपके पास आई है काम पे, तो मैं तो उसके पीछे पता करने कि उसका आइज़ का मसला है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास नहीं आई, हमने नहीं देखा। लेकिन जो सोसाइटी के कैमरे थे उसमें मैंने देखा वो उनके घर में के पास गई, एंटर हुई है, लेकिन वो आगे से मुझे उन्होंने जवाब दे दिया। फिर मैंने ये रिपोर्ट दर्ज करवाई है, तो पुलिस ने जो है ना मेरा काम बस इधर उधर कर दिया, पूरा नहीं किया। आज हफ्ता पूरा हो गया मेरी बेटी का, कोई जवाब नहीं, कोई कुछ सुराख नहीं निकला। तो ना ही वो अकेली जा सकती है, ना पैसे घर से पकड़े हैं, ना कुछ है, ना अभी उसकी उम्र भी 16 साल है। तो आप उनको ये बात क्यों नहीं कहते कि कैमरे की जो फुटेज है, जो तस्वीर जो आप कह रहे हैं कि हमने फुटेज इसकी तस्वीरें भी ली हैं, तो वो तस्वीरें तो यही कह रही है ना, आखिरी दफ़ा वो घर के अंदर एंटर हुई है, जब वो घर से नहीं निकली तो फिर बच्ची गई कहाँ है? जी मैंने कहा, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा जो है ना ये सोसाइटी के कैमरों का एक टाइमिंग है कि ये जी हफ्ते के बाद डिलीट हो जाता है, तो वो बाजी डिलीट हो गए, हम आपको नहीं दे सकते। तो सामने वाले जो हैं उनके घर कैमरे लगे हुए, मैंने उनकी रिक्वेस्ट की कि आपके घर के कैमरे हैं, आप ओपन करवा के, मेरे साथ पुलिस वाला भी था, मैंने कहा आप
कैमरे ऑन कर दें और मेरी बेटी का पता चल जाए कि इस गली से बाहर गई है कि नहीं गई है। आपके पास तो होगा ना कि वो कह रहे नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे साफ जवाब दे दिया कि बेटा हम इस चक्कर में नहीं पड़ सकते, हमारा ये काम नहीं है, आपकी बेटी है, उनके घर मुलाजिम थी, आप उनसे बात करें, हमसे ना बात करें, हमें इस चक्करों में ना डालें। अहले मोहल्ला जो है उनके हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, क्या कहता है कि वो लोग कैसे हैं? अहले मोहल्ला का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन वो जो है ना सामने वाले थी, मोहल्ले वाले ही हैं उनके, उन्होंने जब ये जवाब दिया और किसी के कैमरे 2 घर जो उनके पास है ना उनके नहीं है कैमरे, तो ना उनके हैं जिधर मेरी बेटी काम करती थी। मैंने सोसाइटी के कैमरों में देखा या उनकी रिक्वेस्ट की, उन्होंने नहीं मुझे दिखाया। अब पुलिस क्या कह रही है आपको कि वो ढूंढ रही है, या वो आपको लगता है कि अब बैठ गई है, वो उनको ऐसे लगता है कि बच्ची उनके पास ही है तो वो सुकून से है? वो बाजी बात नहीं मेरी सुन रहे, वो कहते हैं कोई हमें सुराख दो। अब मेरे पास कोई सुराख होता तो मैं मीडिया के पास या पुलिस के पास क्यों जाती? मेरे पास कोई सुराख नहीं, उनके अलावा कोई सुराख नहीं, वही घर है, उसी वही सुराख है उनके पास। जब चली गई है तो वो मुझे आगे से धमकियां लगा रहे हैं। उन्होंने मुझे कॉल की, जब मैंने दरख्वास्त दी है उनको पता चला, उन्होंने मुझे धमकी दी कि तुम्हें नहीं पता हमारी पावर का, तुम हम पे मतलब ये अटैक कर रही हो, बच्ची का क्यों कर रही हो, आप ढूंढो जहाँ ढूंढना चाहती हो, जहाँ जाना चाहती जाओ, हमारा आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमने आपकी बच्ची का हमें नहीं पता, तुम्हें पता हो, तुम माँ हो। मुझे धमकियाँ अलग अलग ऐसे लगा के ना, तो मुझे जो है ना डराया उन्होंने। जी नाज़रीन, आपने सुना कि वालदा मेरे साथ थी, जिस बच्ची का नाम रुखसार है, और वो ये कह रही हैं कि जिस घर पे वो काम करती थी और वो घर वाले भी धमकियां देने लगे कि आपने जो करना है वो आप करें, क्योंकि बच्ची उनके पास है, बकौल इनके कि बच्ची उनके पास है, क्योंकि लास्ट टाइम उस घर पे गई है और उस घर से बाहर आते किसी ने नहीं उसको देखा, तो यही लगता है कि बच्ची वहाँ है और उसने कोई वरगार कर उसको मीन के उसका माइंड वॉश किया है, जो कि वो बच्ची को वहाँ से आने दे रही है। आप भी यही समझती हैं कि उसका माइंड वॉश किया गया? जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो हुकूमत से भी अपील करती है कि उनकी बच्ची को बाजियाब करवाया जाए और उनकी बच्ची उनके हवाले की जाए, क्योंकि वो अंडर एज है, अभी वो 18 साल की भी नहीं हुई है, वो अकेली इस घर को चलाने वाली है और ये गरीब लोग हैं और ये इतनी पैरवी नहीं कर सकते। हम भी हुकूमत से अपील करते हैं, IG पंजाब से भी अपील करते हैं कि वो इनकी आवाज़ बने और इनकी बच्ची को जल्द से जल्द बाजियाब करवाए। अपनी मेज़बान को इजाज़त दें, फिर हाज़िर होंगे एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।